Hello everyone, very good evening guys. Yes, we are done with chapter number first, basics of demand and supply and forms of market competition. We are done with national income accounting and related concepts like GDP, GNP. ओए कुछ याद है क्या? NNP, per capita income. Okay, all these things, yes, all these things we are very well covered. Indian economy भी हम लोग कर चुके हैं पहले ही, because it's a relatively easier chapter. Indian Union budget is the next agenda. Indian Union budget. Would you please tell me who this honorary person is? Budget 2020 इन्होंने प्रेजेंट किया था जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी. यस, सो वी हैव टू स्टडी जी, वी हैव टू स्टडी सम कंसेप्ट्स इंडिया लेवल पे. इंडियन यूनियन बजट के पर्सपेक्टिव से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है. सो गाइस, पहले थोड़ा इन जनरल इंडिया के बजट को लेके कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. पहले तो बजट इज रिलेटेड टू व्हाट? वुड यू टेल मी, वुड यू गिव मी सम आइडिया? बजट यानी किससे रिलेटेड होगा ये? करेक्ट. Whenever we talk about the word budget, always remember that it will be about money. Of course, it would be about the financials. Yeah, it will be about the financials of the country. Yes. So let's study some backgrounding related to budget. Overview of Indian Union budget. The first Indian budget was presented by Mr. James Wilson on February 18th, 1869, after Indian budget was introduced on 7th April 1860 by East India Company. यानी उसके पहले जब हिंदुस्तान था, जब भारतवर्ष था, कोई इंडिया नहीं था, तो इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू छोटा छोटा प्रोविंसेस थे, ठीक है. वी हैड हैदराबाद, वी हैड, ठीक है, अशोका के जमाने से अलग अलग एरियाज बने हुए थे. देयर वर नो स्पेसिफिक स्टेट्स, देयर वर नो इंडिया, देयर वर नो इंडिया पाकिस्तान. 1860s में पहली बार बजट लाया किन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने. सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया को थोड़ा सिविलाइज किया है Britishers ने. Now, the first budget of independent India was presented by the then finance minister, Mr. R.K. Shanmukham Shetty, on November 26th, 1947. Till 1955, budget was only printed in English language. However, from 55-56, budget started getting printed in both languages, Hindi and English. In the British era, budget used to be presented at 5 p.m. This practice was discontinued in the year 2001 by presenting the budget at 11 a.m. तो guys, MCQ के लिए गोल्ड है ये. बजट कितने बजे प्रेजेंट होता है अभी इन टुडे सिनेरियो? 11 a.m. ये यस, ये MCQ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये, और ये करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. समझ रहे हो क्या आप? कहीं से भी वो लोग क्वेश्चन फ्रेम अप कर सकते हैं. नाउ, until 2017 the ritual was present the budget on the last working day of February. From last 2 years, budget is now presented on the first working day of the February. So guys, पहले 28 या 29 February को प्रेजेंट किया जाता था, but now it is being done on the first working day of the February. working day बोला, इसका मतलब 1st February होगा क्या? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ February बोला है. अगर 1st February संडे रहा तो नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे. अगर उसके कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है तो फिर 2nd February विल बी द फर्स्ट वर्किंग डे. करेक्ट है? या. मिस्टर KC Nyogi and Mr. HN Bahuguna were the only two finance minister who did not present any Indian budget. इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स तो बने लेकिन इंडियन कोई बजट उन्होंने पेश नहीं किया. They were the only finance ministers. The record of presenting maximum number of budget is held by
Shri Morarji Desai for presenting 10 budgets. MCQ Gold. For the first time in 92 years, Union Budget of 2017 merged with the Union Budget of Rail Budget, which was usually presented separately. 2017 तक इंडिया का रेलवे बजट और इंडियन कंट्री का बजट अलग अलग होता था, बट नाउ दे आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम 2017. बट बजट ये नहीं क्या यार, तुमने ये वर्ड जनरली भी सुना होगा, ये खरीदना है क्या आपको, ये चाहिए क्या आपको, तो हम लोग क्या कहते हैं, बजट के बाहर है. किसी भी शॉप में जाते हैं तो वो शॉपकीपर पहले क्या पूछता है, क्या दिखाओ, आप कहते हो कुछ भी दिखा दो, तो वो धीरे से पूछता है बजट क्या है आपका, आपकी वो फाइनेंशियल स्टेटस जानना चाहता है. अगर मैं बात करूं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस मैंने जानना है, जैसे बैंक लोन बिना फाइनेंशियल स्टेटस जाने देगी क्या किसी को? दो फ्रेंड्स है तुम्हारे पास, एक फ्रेंड जो घर से ठीक ठाक है, एक जो फ्रेंड जो घर से बहुत ज्यादा गरीब है. अगर उन दोनों में से कोई भी लोन मांगता है तो किसको दोगे आप? जो लौटा पाए पैसे. करेक्ट है? बैंक वाले भी यही कंसेप्ट पे अपना बिजनेस चलाते हैं, जो पैसे लौटा पाए. पैसे तुम्हारे पास कितने, कौन से डॉक्यूमेंट से पता चलता है आपके पास पैसे? हाँ, बैलेंस शीट से पता चलता है. आपके पास पैसे कितने हैं, बैलेंस शीट से पता चलता है. बैलेंस शीट पीएनएल के लिए कॉमन वर्ड बताओ, बोलो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बताए, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अभी गवर्नमेंट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, सरप्लस होगा, ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट होगा, बट देन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट पीएनएल. अच्छा एक काम करो, क्या हर बिजनेसमैन अपना बैलेंस शीट पीएनएल बनाता है? क्या हर बिजनेसमैन अपना बैलेंस शीट पीएनएल बनाता होगा? सोचो. बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना स्टेटस नहीं पता चलेगा कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या नया करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पता चलेगा. एक बात बताओ, क्या इंडिया का भी बैलेंस शीट बनना चाहिए? क्या कहते हो? क्या इंडिया का भी बैलेंस शीट बनना चाहिए? क्या कहते हो? इंडिया का सोचो, क्या इंडिया का बैलेंस शीट बनना चाहिए और बनता है, उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंडिया का भी बैलेंस शीट बनता है. सर लेकिन गवर्नमेंट पैसा कहां से कमाती है? चलो पिछले चैप्टर में मैंने काफी सिखाया आपको. गवर्नमेंट का पैसे कमाने का जरिया बताओ. टैक्सेस. परफेक्ट, वेरी गुड प्रियल. इनकम टैक्स है और इनकम टैक्स है. उसके अलावा ये तो डायरेक्ट टैक्स हुआ, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, जीएसटी के थ्रू भी तो पैसा कमाती है गवर्नमेंट. तो ये गवर्नमेंट की इनकम्स है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स है. क्या गवर्नमेंट के कोई खर्चे भी है? ठीक है, हाँ सब्सिडीज है. ठीक है, सब्सिडीज एक सरप्लस है, एक एक्सपेंडिचर है. ये कोरोना के कारण काफी लोगों को मुआवजा देना पड़ा, काफी लोगों को फ्री में मेडिसिन देनी पड़ी. इसके लिए कितने रुपए का रिलीफ पैकेज था कोरोना के लिए? 20. ठीक है, थोड़ा ये पता करना, ठीक है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलो देखते हैं इंडिया का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजीज एंड हेड्स कवर्ड अंडर द बजट. बजट के अंदर कौन से कंसेप्ट्स आते हैं? सबसे पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112. ओ आपने थोड़ा बहुत कंपनी लॉ तो पढ़ा ही है ना, थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा है ना तुमने, लीगल एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ा है क्या? लॉ पढ़ना है तो लॉ पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? बोलो. लॉ पढ़ना है तो लॉ पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कोई ना कोई. हाँ, परफेक्ट. लॉ पढ़ना है तो कोई ना कोई एक्ट
पढ़ना पड़ेगा। लॉ समझना है तो कोई ना कोई एक्ट समझना पड़ेगा, एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस होती है वो किस फॉर्म में दी होती है बताएंगे? एक्ट, परफेक्ट। एक्ट्स के अंदर जो भी प्रोविजंस होती है सेक्शंस के थ्रू होती है। एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस है सेक्शंस के थ्रू होती है। जैसे किसी को फांसी की सजा सुनानी है तो सेक्शन, कोई होगा सेक्शन, दफा सुना है तुमने? दफा, दफा 302 के तहत फांसी की सजा, सेक्शन। इंडियन पीनल कोड में लिखा है, इंडियन पीनल कोड, एक्ट है ये पेनल्टी का अलग से। एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे तुम, पहुंचोगे क्या? लेकिन एक्ट में दी होती है सेक्शंस। अब मुझे आप बताइए, क्या एजुकेट होना हमारा हक है? कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिलना ही चाहिए, क्या कहते हो? ये राइट आपको कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का, बोलिए बोलिए, भारत का संविधान। ये हुई ना बात, ठीक है। जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे ही, जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या होते हैं? बोलो। परफेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स होते हैं, रहेगा याद? पक्का? आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ के हो ही गया होगा, एम आई राइट? वेरी नाइस। Article 112 of the Constitution requires the government to present to the Parliament a statement. एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 है, वो कहता है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या देखते हैं? प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। FY, व्हाट इज FY? financial year 1st April to 31st March. This statement is the annual financial statement. The annual, okay, अब एक मिनट सर, ऐसा कैसा होगा? ऐसा ऐसे होगा, देख लो। एक्चुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी का फ्रंट पेज देख लो। केंद्रीय सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक यानी एनुअल, फाइनेंशियल यानी वित्तीय यानी फाइनेंशियल, और विवरण यानी स्टेटमेंट। ठीक है, क्या लिखा है नीचे? देखो क्या लिखा है, पढ़ो इसको। जैसा संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, एज लेड बिफोर द पार्लियामेंट, यानी गवर्नमेंट के केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार यानी कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई इस साल? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई इस साल, और इसमें से हम क्या करने वाले? अब इनकम हुआ तो क्या करते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर कितने होने वाला है, क्या इसका हिसाब देना चाहिए? क्या कहते हो? क्या किया गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर, इसका हिसाब दो। ये हमसे भी हिसाब मांगा जाता है क्या? ऐसा सोच के बताओ, क्या हमसे हिसाब मांगा जाता है ऐसा? जैसे आपका हिसाब कब होता है बेटा? करेक्ट, यू आर अ मच्योर्ड बंच ऑफ स्टूडेंट्स, यू आर अ मच्योर्ड बंच ऑफ स्टूडेंट। रिजल्ट के टाइम सर पूरा हिसाब होता है सर,
ठीक है, पूरा हिसाब होता है, फिर वो फोन वोन सब निकलेगा फिर, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे ऊपर गवर्नमेंट के भी ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, आपको इंडिया का बैलेंस शीट पीएनएल देना पड़ेगा, आपको इंडिया का बैलेंस शीट पीएनएल देना पड़ेगा। और किसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा बताइए? पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज द एनुअल, और ये इसका पीरियड क्या रहेगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। परफेक्ट, ओके। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजुअली वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट। अब कैसा है, वो नंबर्स देख के फायदा नहीं है, लेकिन क्या इज इट अ 10 पेज डॉक्यूमेंट, ये बता दो पहले। इज इट अ वाइट डॉक्यूमेंट, पहले तो ये बता दो। दिस इज द फर्स्ट पेज। और ऐसे कितने पेजेस हैं मैक्सिमम? वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड दोज पार्ट्स आर कंसोलिडेटेड फंड, ये क्या होता है थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग, आज ही देखेंगे। कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, ये भी हम लोग आज ही देखेंगे। एंड पब्लिक अकाउंट। For each of these funds, the government has to present a statement of receipts and expenditure. ये consolidated fund क्या होता है, contingency fund क्या होता है, देखेंगे हम लोग, बस आपको ये बात ध्यान में रखना है। The 3 parts of annual financial statements are consolidated fund, contingency fund and public account. Consolidated fund, contingency fund and पब्लिक अकाउंट, ठीक है। 3 पार्ट्स करेक्ट है? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। एमसीक्यू के लिए गोल्ड है ये, व्हाइट पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, 10 पेज का होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट है यहां पे तो बता दीजिए। संतोषनी, पंकज, प्रीत, अदिति, गोपाल, नो? कैन वी प्रोसीड? करेक्ट, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बता सकता हूं आपको प्लीज? ये पार्लियामेंट के सामने क्यों रखना पड़ता है, ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप एक बात समझ लो, एनैक्टमेंट, कोई भी एक्ट बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोलो? एनैक्टमेंट। एनैक्टमेंट यानी एक्ट बनाने की प्रोसेस। एनैक्टमेंट के अंदर पहले एक बिल आता है, वो बिल वो किसके सामने प्रेजेंट किया जाता है? कैबिनेट। अगर कैबिनेट ने कहा कि हाँ हमें इसकी जरूरत है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा ये? पार्लियामेंट में, ठीक है। वो प्रेजेंट हो जाएगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में देयर आर 2 हाउसेस, कौन से? क्या आप पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग? लोकसभा एंड राज्यसभा। और फिर अगर लोकसभा ने किसी उस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया, तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट ने कहा कि हां बनाओ इसको, तो वो बनता है एक लॉ। कैसे सर? लेकिन ये लॉ तो हमने बनाया नहीं, हम क्यों मान ले इसको लॉ? ये तो हमने बनाया नहीं है। क्या ये लॉ तुमने ड्राफ्ट किया है? क्या ये बिल तुमने ड्राफ्ट किया था? है ना? नहीं, ये लॉ, ये बिल हमने ड्राफ्ट नहीं किया था, ये हमने ड्राफ्ट नहीं किया था, और हमको तो पता भी नहीं था कि इसकी हमें जरूरत थी। एम आई राइट? तो फिर ये सर हमारे हक में है, ऐसे कैसे पता चलेगा? 1 मिनट, हमारी गवर्नमेंट ने बताया, वेरी गुड, लेकिन वो तुम्हारी कैसे हुई? यहां पे तुम्हारा कहां बंदा है? तुम कहां हो यहां पे? देखो जरा, यहां पे तुम्हारा बंदा। हमने इन्हें सिलेक्ट किया है, लोकसभा।
हमने किन्हें सिलेक्ट किया है? लोकसभा। हमने लोकसभा को सिलेक्ट किया है। लोकसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं हम चुनते हैं उनको। हम जो वोट करते हैं ना लोकसभा इलेक्शन में, यानी आप करोगे जो अगले साल से, हम वहां वोट डालते हैं और हमने इंडिया में जिसने भी मेजरली जिसको चुना है वो फिर यहां से हमारे वोट के कारण लोकसभा में जाके बैठते हैं। और लोकसभा में जो मेजोरिटी जो सिलेक्ट हुआ है मेजोरिटी से वो यहां बैठे हैं। तो क्या वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है? सोचो जरा। इसका मतलब हमारे कॉन्फिडेंस के लोग यहां बैठे और उन्होंने जो किया होगा वो सही ही किया होगा, और इसलिए ये लॉ मान लिया जाएगा कि हमारे हित में और हमने ही बनाया है और इसे हम नहीं एक्सेप्ट। समझा? क्या ये क्या है? ये लोकसभा। दिस इज लोकसभा एंड दिस इज राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, एनैक्टमेंट। उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। व्हाट इज कंसोलिडेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन यानी क्या? दिमाग लगाओ। कंसोलिडेशन मिक्स करना नहीं, सारी चीजें एक साथ ले आना, इस कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। ठीक है, आप जब एग्जीक्यूटिव में जाओगे ना, तो आप सिलेबस में एक चैप्टर पढ़ोगे कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे एक कंपनी का बैलेंस शीट नहीं, आपको 2 या 3 कंपनीज के बैलेंस शीट को एक बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पढ़ोगे ना, कॉन्फिडेंस से पढ़ोगे ना। अब इंडिया ने जितने भी फंड्स अपने पास है, जितने भी फंड्स हमने बोरो किए हैं, उन सबका एक कंसोलिडेटेड फंड बनाया जाएगा। देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। ऑल रेवेन्यूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी बोरोड and receipts from loans given by the government flow into the consolidated fund of India. All government expenditure is made from this fund. इंडिया की सारी रेवेन्यूज, इंडिया जिस भी तरीके से पैसा कमाता है, इंडिया की सारी रेवेन्यूज, सारा बोरोड मनी, receipts and loans given by the government flow into the consolidated fund of India. The most important of all government funds, all revenues raised by the government, money borrowed and receipts from the loan given by the government flow into the consolidated. जो भी पैसा बोरो किया, जो भी पैसा मिला, ठीक है, जो भी रेवेन्यू हमारा बना टैक्सेस से एंड ऑल, ये सब कुछ जाके कहां जाता है? CFI में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिया का ही पैसा है ना आखिर में। द लार्जेस्ट, ध्यान से पढ़ो ये एक्स्ट्रा है। द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंड कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द कैश फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड रिटर्न्स मेड ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन आउट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो भी रिटर्न मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी पैसा वापस मिलेगा, लोन जो दिया हुआ है, वो सब कुछ जाएगा कहां? CFI में। दिस इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंड। MCQ, गोल्ड। ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल आइटम्स मेट फॉर कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट में थोड़ी देर में समझा दूंगा आपको। अदरवाइज बाकी सारे आइटम्स इसी में से खर्च किए जाते हैं। इंपॉर्टेंटली, नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट किसका अप्रूवल? कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते, किसका अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट में। अब जब तक के पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता, जब तक के
पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक कि पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च नहीं कर सकते। गाइस प्लीज गिव इट अ रीड और आप ये लिख लीजिए प्लीज। Are you done? So that's consolidated fund of India. पैसे कहां से खर्च होंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिया के फाइनेंशियल्स कैसे है, ये कैसे पता चलेंगे? इंडिया के, बोलो बोलो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो भी हम लोग करने वाले हैं ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन किस में लिखी होती है? आर्टिकल्स में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में काफी सारा पैसा होगा। तगड़ा पैसा होगा क्या, सोचो। और अब हमको पैसे खर्च करने हैं, तो क्या हम पैसे मंगाएंगे? क्या पैसे मांगने पड़ेंगे या यूं ही मिल जाएंगे? सर सॉरी टू से, लेकिन पैसे मांगने पड़ेंगे। इट इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स, परफेक्ट। डिमांड फॉर ग्रांट्स इज द फॉर्म इन विच estimates of expenditure from the consolidated fund included in the annual financial statement are required to be voted upon in Lok Sabha. Demand for grants passichiye is the form in which estimates of expenditure from the consolidated fund included in the annual financial statement are required to be voted upon in Lok Sabha are submitted in pursuance of Article 13 of the Constitution. The demand for grants includes provision with respect to revenue expenditure, जो जरूरी खर्चे हैं शॉर्ट टर्म के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं? लॉन्ग टर्म। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एंड डे टू डे एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन grants to the state and union territory governments together with loans and advances। ये दूसरे गवर्नमेंट्स को लोन्स वगैरह देने पड़ते हैं क्या? कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है क्या इनको? सोचो। पैसों की तो जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। सो गाइस फिर ये जो ग्रांट डिमांड किया जाता है पार्लियामेंट के आगे रखा जाता है और फिर पार्लियामेंट हेल्प करता है, ठीक है। लोकसभा वोट करता है और फिर पैसे सैंक्शन होते हैं। जनरली on demand of the grant is present in respect of each ministry of the department. However, for large ministries and department, more than one demand is presented. Ministry, जैसे अगर हमें ये कोरोना का जो मैटर था, कौन से मिनिस्ट्री ने मैनेज किया होगा? जो कोरोना का मैटर था ये, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आप समझ रहे हो? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोरोना से लड़ने के लिए किसने पैसे मांगे होंगे? किसने डिमांड किया होगा ग्रांट्स के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है।
ऐसा होता है हर एक चीज के लिए डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है। हर इंडस्ट्री के लिए या तो मिनिस्ट्री होगी या तो डिपार्टमेंट होगा। जैसे कंपनी के लिए कौन सा मिनिस्ट्री है, बोलो बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऐसा है। तो हर हर एरिया को डेवलप होने के लिए फंड चाहिए, उस मिनिस्ट्री को या उस डिपार्टमेंट को, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेक्टर है, उस डिपार्टमेंट को ग्रांट मांगना पड़ेगा। किससे मांगना पड़ेगा, किससे मांगना पड़ेगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हाँ यानी सेंट्रल यानी गवर्नमेंट यानी पाल, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर डिमांड करोगे तो फिर पैसे कहां से दिए जाएंगे, बोलो बोलो? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गाइस रिलेटेड है रे एक दूसरे से, ध्यान दो रे, याद रहेगा क्या? आगे बढ़े। पैसे चाहिए, डिमांड कर लो। हमारे घर वाले भी पैसे चाहिए, पापा दो 5,000 रुपए दो, ये लो बेटा, करेक्ट। नहीं सर मम्मी की अप्रूवल लगती है, तो मम्मी क्या बन गई यहां पे? लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन डिफिकल्ट वर्ड पूछ लेते लोग। नॉट बैड, अप्रूवल ऑफ बिल्स। Appropriation bill is the power of the government to withdraw funds from the CFI. Appropriation bill is the power of the government to withdraw funds. Appropriation bill gives the power to the government to withdraw funds from Consolidated Fund of India for meeting the expenditure during the financial year. Post the discussion on budget proposals and the voting on the demand for grants, the government introduces the appropriation bill in the Lok Sabha. It is intended to give authority to the government to withdraw from consolidated fund the amount so voted for meeting the expenditure during the financial year. So appropriation bill हमें help करता है कि गवर्नमेंट का पावर कितना फंड विड्रॉ करेंगे, और गवर्नमेंट मनमानी नहीं करेगा, लोकसभा इसको अप्रूव करेगा। यानी क्या हम ही अप्रूव करने वाले हैं? हाँ सर, क्योंकि लोकसभा में जो लोग बैठे हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो किसने किसने अपॉइंट किए? लोकसभा है वो, लोकसभा। क्लियर है? एप्रोप्रिएशन, कंसोलिडेटेड फंड से गवर्नमेंट को पैसा निकालना है, तो हम तो गवर्नमेंट है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, निकाल लो पैसे, ऐसा नहीं होगा, लोकसभा। उसके बाद फाइनेंस बिल, नए टैक्सेस लाना, टैक्स का रेट चेंज करना। जैसे जीएसटी हर आइटम पे सेम है क्या? जीएसटी का रेट ये एयर कंडीशनर पे कितना जीएसटी है? ओके, नॉट बैड। आपकी ट्यूशन क्लास की फीस पे ट्यूशन क्लास की फीस पे कितना बिल है? हाँ, नो 18%, ठीक है। आपके एयर कंडीशनर पे 28%, ठीक है। आईफोन पे 28%, महंगे प्रोडक्ट्स या लग्जरियस प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा जीएसटी होता है, ठीक है। जब पहली बार सर्विस टैक्स आया था तो सिर्फ 5% था वो, कई धीरे धीरे, पहले जीएसटी आया नहीं था, पहले सर्विस टैक्स आया था सिर्फ, धीरे 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 बदल गया वो। सर ये जो बदलाव होता है वो किसके तहत होता है? फाइनेंस बिल के तहत। नए टैक्सेस, जैसे डायरेक्ट टैक्स सिखाया ना मैंने आपको, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको क्या क्या बताया एग्जांपल? पुराने जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2011, 2011 तक एक और टैक्स होता था, डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। जिसके पास भी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा वेल्थ दिखती थी बैलेंस शीट में, उसको अलग से 1% वेल्थ टैक्स भरना पड़ता था, वेल्थ टैक्स। अब नहीं रहा वो। सर ये चेंजेस किसके थ्रू किए जाते हैं? फाइनेंस बिल। द फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल as defined in Article 110 of the Constitution. The proposal of the government for levy of new taxes
सो गवर्नमेंट जो भी नए टैक्स या नया टैक्स स्ट्रक्चर लाने वाली है, इसके बारे में फाइनेंस बिल में जिक्र होता है और ये हर साल आता है. A finance bill is a money bill as defined in Article 110. The proposal for government for levy of new taxes. नया टैक्स आ सकता है अभी अगले फाइनेंस बिल में एक नया टैक्स आ सकता है. कोरोना सेस, कोरोना टैक्स आ सकता है 2%. बहुत खर्च हो गया ना कोरोना के कारण गवर्नमेंट का, तो अब किससे वसूलेंगे? हमसे ही वसूलेंगे और मेहनत करवाएंगे हमसे. ठीक है. एंड द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, modifications of existing tax structure or continuance of existing tax structure beyond the period approved by the parliament are submitted to the parliament through this bill. कुछ, ठीक है, कुछ टैक्स कंटिन्यू किए जाते हैं, कुछ टैक्स डिसकंटिन्यू किए जाते हैं. कोई एग्जांपल दे सकते हो जो टैक्स अभी नहीं रहा, पहले होता था? वेल्थ टैक्स, हाँ, एक वैट भी होता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. अब वो सब रिप्लेस हो गया किससे? जीएसटी से. पहले सर्विस टैक्स भी होता था, लेकिन अब सर्विस टैक्स नहीं रहा. पहले हर आइटम पे वैट, सर्विस टैक्स अलग अलग होता था, अब ये सब नहीं रहा, एक जीएसटी आ गया. देन द फाइनेंस बिल इज accompanied by memorandum containing explanation of the provisions. Finance bill can be introduced only in Lok Sabha. However, Rajya Sabha can recommend amendments. The bill has to be passed by the parliament within कितना? 75 days. बिल को आपको अगर रिस्पेक्ट देनी है, बिल को आपको चलन में लाना है, तो कितने दिन में पास करना पड़ेगा? 75 डेज. 75 डेज. अच्छा, ये एक बात बताओ, यहां से पैसा निकालना आसान है क्या? यहां से पैसा निकालना आसान है क्या? है ना? कंसोलिडेट फंड ऑफ से, अरे यार वो परमिशन लेनी पड़ती है. करेक्ट. गवर्नमेंट को भी लगती है परमिशन. करेक्ट. ठीक है. बाकी मिनिस्ट्री को तो बेचारों को डिमांड करना पड़ता है. करेक्ट. और वो भी अगर तुम्हारे एनुअल फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फंड में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उसका कोई प्रोविजन होगा तो ही पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. यार कैसा है ना, जैसे ये जो है ना हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये पापा का पर्स है. पापा के पर्स से पैसे निकलवा सकते हैं कि कभी भी? है ना? नहीं, मम्मी के भी नहीं निकाल सकते, वो हिसाब मांग लेती है. कुछ चीजों पे हम खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकते. एम आई राइट? कुछ चीजों के लिए हम पैसे खर्च करना चाहते हैं, पेरेंट्स से पैसा नहीं मांग सकते. देर आर सम रीजन. जैसे तुम अपने दोस्त को पैसे देना चाहते हो इमरजेंसी में 1000 रुपीज, पेरेंट्स से मांगोगे क्या तुम? तो तुमको क्या बोलेगी? क्या जरूरत है, तू पहले अपना देख ले. ऐसा ही बोलेंगे हमको? मना कर देंगे ना, नहीं देने देंगे. और हमारे दिल में क्या होता है? मेरा दोस्त है यार, उसने पैसे डुबा दिए तो भी जाने दे. एम आई राइट? हमारे पेरेंट्स को हमारी दोस्ती के बारे में पता नहीं होता, यानी हम लोगों को कितना गचा उनको नहीं पता होता. मेरा दोस्त को मदद चाहिए, मैं करूंगा. कंसोलिडेटेड फंड से लेने जाओगे, मार पड़ेगी. अपना खुद का पैसा होना फैजल, क्या बोलते हो? यानी इमरजेंसी के पैसे, तुम्हारे पास खुद के पास भी थोड़ा सा ब्लैक मनी होगा ना? क्या कहते हो? तुम्हारे पास खुद का ब्लैक मनी होगा ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है उस पैसों के बारे में, 100 200 500. क्या कहते हो? बोलो, है क्या थोड़ा बहुत पैसा खुद का? अरे बनाया होगा तुमने. यानी मैं ये नहीं कहता एकदम 2 लाख 3 लाख रुपए होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा तो होगा यार. क्या कहते हो? कि इमरजेंसी में बॉयज का कैसा रहता? कभी गर्लफ्रेंड बनेगी तो पैसे खर्च करेंगे. बेचारे ऐसे उम्मीद करते रहते हम लोग. एम आई राइट बॉयज? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ऐसे इमरजेंसी वाले फंड को कहते हैं कंटिंजेंसी फंड. और वो कंटिंजेंसी फंड कितने करोड़ का होता है? 500 करोड़ का. और ये प्रेसिडेंट जब चाहे तब खर्च कर सकता है. ये इंडिया के प्रेसिडेंट जब चाहे तब खर्च कर सकते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. कंटिंजेंसी फंड, एज द नेम सजेस्ट, एनी अर्जेंट और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर
is met from this fund. The rupee 500 crore fund is at the disposal of whom? Is at the disposal of the president. Any expenditure incurred from this fund requires a subsequent approval from parliament, and the amount withdrawn is returned to the fund from consolidated fund. ठीक है. So guys, the name suggests कितना रुपए? 500 करोड़ प्रेसिडेंट के पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे. कितने रुपए? 500 करोड़. ठीक है. और एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर्स अ सब्सिक्वेंट अप्रूवल. बाद में देखते बैठेंगे, अप्रूवल बाद में लेते बैठेंगे. एंड द अमाउंट विड्रॉन इज रिटर्न्ड, ठीक है, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. यानी प्रेसिडेंट के पास पड़े हुए, बाद में वो प्रेसिडेंट उसको खर्च कर देगा और ये कंटिजेंसी फंड में ये पैसे वापस कहां से डालेंगे? 500 करोड़ की. अभी हमने इसको मान लेते हैं कहीं बाढ़ आ गई और हमने बिहार में बाढ़ आ गई. बिहार में बाढ़ आती है ना बहुत, है ना, बहुत बाढ़ आती है. तो हमने बाढ़ में रिलीफ पैकेज में 200 करोड़ रुपए प्रेसिडेंट ने खर्च कर दिए इमरजेंसी में. अभी इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड कितने रुपए पे आ गया? अभी इसका जो बैलेंस है वो 300 करोड़ है. और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कितने पैसे होने चाहिए हमेशा? 500 करोड़. तो इसमें पैसे कहां से आएंगे? अब इसमें 200 करोड़ डाले जाएंगे. कहां से? परफेक्ट. CFI से पैसा लाया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा लाया जाएगा. क्लियर है? ठीक है. ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट है ना? ये सुप्रीम कोर्ट है ना? बोलो. राष्ट्रपति भवन है. राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट नहीं है वो. ठीक है. राष्ट्रपति भवन क्यों दिखा रहे आप कंटिजेंसी फंड में? क्योंकि कंटिजेंसी फंड प्रेसिडेंट के, ओके, हाँ, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कैसे डिस्पोज करे. डिस्पोज यानी क्या? खर्च. कैसे इस पैसों को यूज किया जाए. जी. उसके बाद पब्लिक अकाउंट. ये गवर्नमेंट के पास हमारा कोई पैसा पड़ा हुआ है क्या? कैसा पैसा? सर हम लोग पीएफ वगैरह में पैसे डालते हैं. हाँ, पीएफ में पैसे डालते हैं बहुत सारे जगह. ठीक है, बहुत सारी जगह पैसा डालते हैं. आम आदमी का बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास होता है. इट इज जस्ट लाइक गवर्नमेंट इज द बैंक. पब्लिक अकाउंट यानी गवर्नमेंट इज द बैंक फॉर सम टाइम, और आपके पैसे गवर्नमेंट के बैंक में है. गवर्नमेंट की जो भी बैंक है उनके पास है, और वो पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उस अकाउंट को क्या कहते हैं? पब्लिक अकाउंट. देखो, दिस फंड इज टू अकाउंट फॉर द फ्लोज फॉर दोज ट्रांजैक्शन where the government is merely acting as a, हाँ क्या लिखा है? merely acting as a banker. for instance क्या? देखो तो जरा, PF and small savings, these funds do not belong to the government. They do not belong to the government. ये पैसे गवर्नमेंट की नहीं है. क्यों? गवर्नमेंट की क्यों नहीं है? सर क्या करने इन पैसों को? लौटाने हैं, इसलिए उनके नहीं है. दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम फॉर द राइटफुल टू द राइटफुल ओनर्स, जिनके पैसे उनको वापस करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ फंड, एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, ये बिकॉज ऑफ दिस नेचर एक्सपेंडिचर, अगर इसमें से आपको खर्च करना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है. गाइस, एमसीक्यू के लिए गोल्ड, पब्लिक अकाउंट में विड्रॉ करना है तो आपको पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है. पार्लियामेंट के अप्रूवल में प्रॉब्लम क्या है? पहले पार्लियामेंट सेशन में आएगा. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग. परफेक्ट. अगर आप ये सब आंसर दे पा रहे हो तो सही राह पे हो तुम लोग. 10 for each of these funds the government has to present a statement of receipt and expenditure. It is important to note that all money flowing into these funds is called receipts, and the funds received and not revenue. तो गाइस, जो भी पैसा आता है इन सारे अकाउंट में, इसको रेवेन्यू नहीं कहा जाता, इनको रिसीट्स कहा जाता है.
इनको रेवेन्यू नहीं कहा जाता, इनको रिसीट्स कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का धंधा नहीं है ये। अगर गवर्नमेंट का ये बिजनेस होता लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, कमर्शियली इन्हें हमारी गवर्नमेंट पैसा कमाना चाहती है कि हमसे, हाँ या ना? जी नहीं, हमारी गवर्नमेंट हमारा ही पैसा हमारे लिए यूज करना चाहता है, करेक्ट? इसमें थोड़ा बहुत घोटाला घोटाला हो जाता है, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, वो जाने दो तुम। लेकिन गवर्नमेंट इज मेंट फॉर, गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट। तुमने पढ़ा भी होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में, करेक्ट? गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट, लोगों की भलाई के लिए बना है वो, इसलिए रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। And so all the receipts in consolidated fund are split into revenue budget, revenue account and capital budget, that is capital account, which includes non-revenue receipts and expenditure. For understanding these budgets, revenue and capital, it is important to understand the revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts and capital expenditure. क्या है ये revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts and capital expenditure? चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल डू नॉट एंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द रेवेन्यू अकाउंट। ऑन द रिसीट साइड टैक्सेस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू। डू यू अग्री? टैक्स सबसे बड़ा रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा रेवेन्यू है टैक्स। एमसीक्यू गोल्ड। So all the receipts in say consolidated fund are split into revenue budget and capital budget, which includes non-revenue receipts and expenditure. For understanding these budgets, revenue and capital, on the expenditure side, anything that does not result in creation of asset is treated as revenue expenditure. Salaries, subsidies and interest payment. ये salary किसको देती है गवर्नमेंट? एम्प्लॉय। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को सैलरी वगैरह मिलती होगी क्या? तो क्या वो अपना घर अपने चाचा के पैसों से चलाएंगे? उनको भी तो पैसे देने हैं। पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, इंडियन लीगल सर्विस के ऑफिसर्स, इनको भी पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? एक्सपेंडिचर है ना गवर्नमेंट का। सैलरी, सब्सिडी तो एक्सपेंडिचर है, पहले ही पढ़ चुके हैं, एम आई राइट? लास्ट चैप्टर में इतना सब्सिडी 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 इतने बार पढ़ा चुका हूं कि मुझे लगता है कि कभी भूलोगे नहीं, राइट? एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट ब्याज किसको देती है? सर, गवर्नमेंट काफी बार आरबीआई से लोन लेती है, काफी बार गवर्नमेंट जीसेक इशू करता है। जीसेक, सर जीसेक क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो सैलरी, सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको शॉर्ट में कहते हैं कैपेक्स। क्या कहते हैं शॉर्ट में? कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स देखते हैं। ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट लिक्विडेट or create an asset would generally be called as a capital account. For instance, if the government sells shares in public sector companies like it did in case of Maruti. Oh my God, मारुति गवर्नमेंट की कंपनी थी। सोचो जरा, मारुति मारुति जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें 51% शेयर मारुति का था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 49% था सुजुकी का। सुजुकी इंडियन कंपनी है ना? जापानीज। सुजुकी इज जापानीज। मारुति सुजुकी की सबसे पहली गाड़ी कौन सी बताओ? मारुति 800। मारुति 800 की हाइट बहुत छोटी थी क्या? सिर लग जाता था मारुति 800 में। तुमने ज्यादा ड्राइव नहीं किया होगा उस कार में। तो जब स्पीड ब्रेकर आता था तो पहले गाड़ी को बचाना पड़ता था और फिर सिर को। वो गाड़ी इतनी छोटी क्यों थी?
क्योंकि वो जापानीज कार थी और जापानीज आर वेरी शॉर्ट इन हाइट, उन्होंने अपने लिए बनाई थी वो, और उसमें बैठ गए भारत के पंजाबी हरियाणवी और फिर उसको थोड़ा ऊंचा करके बनाया गया वैगन आर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जापानीज, ठीक है, तो पहले तो जापानीज था, जापानीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और फिर धीरे धीरे अब देखो ना, गवर्नमेंट मारुति सुजुकी की कार में मारुति का लोगो आता है क्या अभी? नहीं। आप अगर मारुति की स्विफ्ट वगैरह देखोगे तो उस पर आपको ये लोगो मिलेगा, ये ऐसा लोगो। आपको यही लोगो मिलेगा, आप चेक करिए, आप ऐसा मिलता है, ऐसा लोगो सिर्फ ऐसा एस मिलेगा सुजुकी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए। तो ये ऐसे शेयर बेच के जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, कैपिटल रिसीट्स है वो, क्योंकि एक्सपेंडिचर था वो, क्योंकि असेट्स थी वो आपकी। शेयर्स असेट्स होती है क्या किसी भी कंपनी में? हाँ सर, शेयर्स असेट होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी होती है। ऑन द अदर हैंड, द गवर्नमेंट गिव्स समवन a loan for which it expects to receive interest, the expenditure would go under capital account. On the other hand, if the government gives someone a loan from which it expects to receive interest, the expenditure would go under the capital account. So guys, जो भी long term investment है या long term loan है, ठीक है, that is capital investment, capital receipt or capital expenditure. In respect of all the funds, the government has to prepare, in respect of all the funds, the government has to prepare a revenue budget detailing revenue receipts and expenditure, and capital budgets, that is capital receipts and capital expenditure. Contingency fund is clearly not that important, क्योंकि वो तो बना हुआ है। कंटिजेंसी फंड कितने रुपए रहते हैं कंटिजेंसी फंड में? 500 करोड़ पड़े रहेंगे वहां पे, हमेशा पड़े रहेंगे। Public account is important, that is gives a view of select saving and how they can be used, but not the relevant from a budget perspective. The consolidated fund is the key to the budget. The consolidated fund is the key to the budget. As mentioned in the first part, the government has to present a revenue budget and capital budget for all three funds. The revenue account of consolidated fund is split into two parts: receipts and disbursement. Receipts यानी पैसे जो आना, disbursement यानी पैसे जाना. Simply income and expenditure. Receipts are broadly tax revenue, non-tax revenue, and grants in aid and contribution. Now, preparing a budget is an extremely tedious and lengthy process. मजाक नहीं होती, पूरी टीम होती है, पूरी टीम होती है, ठीक है, अराउंड 40 लोगों की, जो 20 से 25 दिन तक एक रूम में बंद रहते हैं, उनको घर वर भी नहीं जाने देते, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है इंफॉर्मेशन। इतना आसान नहीं होता। Preparing a budget is an extremely tedious and lengthy process. It begins with the budget division, including circular to all ministries, states, union territories, autonomous bodies, departments, defense forces, which are asked to submit expenditure estimates from the upcoming year. Extensive consultations are held between the unit ministries and Department of Expenditure on the Finance Ministry once the estimates have been submitted. In the meantime, the Department of Economic Affairs and the Department of Revenue meet stakeholders such as farmers, businessmen. FII, I would love to know. Raise your hands. FII, raise your hands. पढ़ा चुका हूं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर में। कम ऑन, यही हुआ तुम्हारा आज का सरप्राइज टेस्ट। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड संतोषनी जी। मैंने माँ ओ यही हो गया इंस्टाग्राम का क्विज आज का। तो कम ऑन, टेल मी, मेक इट फास्ट। FII, चलो चीटिंग कर लो, चीटिंग कर लो, इसी बीच चीटिंग कर लो। वेरी गुड प्रेरणा, यस प्रेरणा, टेल मी। प्रेरणा, व्हाट इज foreign? Chitra, the answer is correct. Prerna, the answer is correct. Foreign institutional investors. The answer is foreign institutional investors. सबसे बात की जाएगी, ठीक है। Foreign institutional economists and civil society groups to take their views. Once the pre-budget meetings are over, the final call on tax proposal is taken by the FM, Finance Minister. The proposal are discussed with the Prime Minister before the budget is finally prepared.
ठीक है, बजट स्पीच में सारी चीजें होती है ये सारी. द बजट प्रेजेंटेशन स्पीच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिमांड फॉर ग्रांट, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल. क्या ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है? आज ही पढ़ा है हमने. मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट. ठीक है, मीडियम टर्म स्टेट पॉलिसी, फिस्कल यानी स्टेट, एंड स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट. एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, कितना हम एक्सपेंडिचर करने वाले, कौन से एरियाज में. प्रोफाइल यानी एग्रीकल्चर में कितना खर्च करेंगे, इंडस्ट्री में कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन में कितना खर्च करेंगे, डिफेंस में कितना खर्च करेंगे, ये प्रोफाइल. ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो कि हम लोग एजुकेशन में कितना, हेल्थ केयर में कितना खर्च करेंगे, डिफेंस पे कितना खर्च करेंगे, प्रोफाइल. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च करेंगे, दैट्स द प्रोफाइल. और कितना खर्च करने वाले हैं, दैट्स द बजट अगेंस्ट दैट प्रोफाइल. और हमें कितना टैक्स आ सकता है, इसका रिसीट बजट. ऑलराइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ the budget and all. All right guys, so as far as the financial statements and the union budget is concerned, we are calling it a day. I hope सारे concepts समझे, right from appropriation bill to finance bill. पक्का. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समझा है? इंडिया की बैलेंस शीट पीएनएल बनती है, उसको क्या कहते हैं? एनुअल financial statement. All right guys, so we are calling it a day. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well, bye bye.